Welcome back, my dear students of grade 7th. In the last video we have studied about the different types of the winds, and today we will study about the precipitation. What is precipitation? After condensation, the tiny droplets of water rise high into the atmosphere and forms clouds. During the movement, small droplets join together to form bigger droplets or ice crystals, which fall on the earth in the form of rainfall or snowfall. These falling droplets of water or ice crystals, that is rain, hail, snowfall, are jointly called precipitation. Precipitation means क्या होता है? दिस इज ए फॉर्म ऑफ रेनफॉल. जब कंडेंसेशन हो जाती है, जब वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है. एज वी गो हायर एंड हायर, यू नो, टेम्परेचर डिक्रीजेज. वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, जिस कारण से क्या होते हैं? जो वेपर्स है कंडेंसेशन के कारण वाटर की ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे जॉइन टुगेदर एंड द फॉर्म क्लाउड्स. और ये जो क्लाउड्स बन जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, दे स्टार्ट फॉलिंग ऑन द अर्थ इन द डिफरेंट फॉर्म्स like rain, hail and snowfall depending upon the temperature in the atmosphere. और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? Precipitation. Now types of precipitation. There are 4 types of precipitation as given below. First is rain. When water vapors condenses around dust particles that eventually get too big or for the clouds to hold and fall on the surface as the rain. जब ये वाटर वेपर्स डस्ट पार्टिकल के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और क्लाउड्स की फॉर्म ले लेते हैं, और जब ये क्लाउड्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं, वो वहाँ पर स्टैंड नहीं कर पाते एटमॉस्फेयर में, दे स्टार्ट फॉलिंग ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो फर्स्ट टाइप इज रेन. जो बारिश आती है, पानी की बूंदें गिरती हैं, दैट इज नोन एज रेन. स्नो. Precipitation that falls on the ground in the form of soft ice is called snow or snowflakes. अगर यही precipitation अर्थ पर जब गिरती है पर इन द फॉर्म ऑफ आइस, यानी पानी नहीं है, वाटर नहीं होगा, बट क्या होगी? स्नो. तो दैट इज नोन एज snowflakes or snow. It is formed when sublimation takes place or turns directly from a gas into its solid form. Sublimation means जब conversion of the vapors directly क्या होते हैं? वो चेंज हो जाते हैं solid form में, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? वो काफ़ी कम हो जाता है, जिस कारण से क्या हो जाते हैं? वेपर्स कन्वर्टेड इनटू स्नो. नेक्स्ट इज हेल्स. Hails. It is the ice falling from the sky, often round in shape. Hailstones form within thunderstorm clouds when upward moving air prevents pellets of frozen water from falling. Hailstorm क्या होते हैं कि जब आपकी स्काई में ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीजेज हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? जो वेपर्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े बड़े पीसीस ऑफ आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. वहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रोज़न हो जाता है पानी कि पानी वहाँ पर से नहीं गिरता. वहाँ पर क्या गिरते हैं? बर्फ़ के बड़े बड़े पीसेस गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. लेट अस मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. See in this diagram, this is the picture of the hails. Hails when occur when the temperature is very less and condensation process take place, and directly the water vapors changes into the pieces of ice. Sometimes the size of the hail is very big. See in this picture, this is the hails. Size of the hails, very big size. Clear that? Next is sleet. It is like snow falling from the sky. Sleet forms when raindrops freeze into ice. They fall to the ground. They are usually smaller and mixed with the rain water. ये भी जब अर्थ पे गिरते हैं तो ये भी इस फॉर्म क्या होती है? लाइक पीसीज ऑफ द आइस. पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनका साइज हेल से थोड़ा सा स्मॉल होता है एंड दे गेट मिक्सड विद द रेन वाटर. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्स एंड स्लीट. क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ rainfall. First is orographic rainfall. When moisture laden wind blowing from the sea strikes against a mountain,
इट इज़ फोर्स टू राइज अप। कई बार ऐसा होता है मॉइस्चर लेडन मीन्स नमी से भरी हुई विंड्स जब ब्लो करती हैं तो उनके रास्ते में अगर कोई माउंटेन्स कोई रुकावट आ जाती है तो वो उसको क्रॉस करने के लिए राइज अप ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं। द राइजिंग एयर कूल्स एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस रिजल्टिंग इन रेन। जब एयर राइज होती है तो वहाँ पर राइज होने से टेम्परेचर कम होने का कूल हो जाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और क्या हो जाता है उसका रिजल्ट, दैट इज रिजल्ट इन रेन, और वहाँ पर बारिश होती है। दिस इज टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड रिलीफ रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल एज इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन विच फोर्सेज द एयर टू राइज अप। जो रिलीफ फीचर यानी माउंटेन्स के कारण हो रही है, इस कारण से हम इसको रेनफॉल को और रिलीफ रेनफॉल या फिर ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं। The windward side of the mountain receives heavy rainfall. Windward side means जिस साइड से winds आती हैं उस साइड को हम कहते हैं windward side of the mountain, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। While the leeward side remain almost rainless on account of its relief. It is the most common type of rainfall in India. और leeward sides में रेन ज़्यादा नहीं होती और इंडिया में जो ज़्यादा रेनफॉल होती है इसी टाइप की होती है, दैट इज़ ओरोग्राफिक रेनफॉल। लेट अस मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सी इन दिस डायग्राम, जहाँ से विंड स्टार्ट होती हैं सी से और दे गेट द मॉइस्चर फ्रॉम द सी एंड स्टार्ट मूविंग। व्हेन दे हैड सम ऑब्स्टेकल इन द वे, जब रास्ते में उन्हें कोई रुकावट मिलती है लाइक माउंटेन्स, तो उस माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए वो राइज अप होना यानी ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। क्लियर? जिससे वहाँ पर राइज अप ऊपर उठने से कूल हो जाती है, एटमॉस्फेयर कूल आता है, जिससे कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो जाती है। और दिस साइड ऑफ द माउंटेन्स इज़ नोन एज विंडवर्ड साइड, और जहाँ पर ही ज़्यादा बारिश होती है। और जहाँ पर जब आती है इस साइड क्रॉस करती हैं तो जहाँ पर जो मॉइस्चर होता है वो यहाँ तक पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है, मीन्स ख़त्म हो जाता है, और जहाँ पर आते आते बारिश कम होती है। दिस साइड इज़ नोन एज रेन शेडो साइड्स और द लीवर्ड साइड्स। क्लियर द ओरोग्राफिक रेनफॉल? नेक्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शन रेनफॉल दिस अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ हीटेड अर्थ सरफेस। ये किस कारण से होती है? बिकॉज ऑफ द हीटेड ऑफ द अर्थ, कि अर्थ के गर्म होने से ये बारिश होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। द वार्म ग्राउंड हीट्स द एयर ओवर इट, देयरफॉर इट गोज ऑन राइजिंग इन द फॉर्म ऑफ currents. These convectional currents, while rising, pick up moisture and after they reach a considerably high altitude, they cools down and condenses to form clouds. Condensed drops of water fall down on the earth. क्या होता है इसमें, जब अर्थ हीटअप हो जाती है, हीटअप होने से क्या होता है वहाँ पर से एयर्स राइज होना शुरू हो जाती है। जब वो ऊपर राइज होती है तो ऊपर आने पर हाई अल्टीट्यूड पे टेम्परेचर लो होता है, जिस कारण से कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड दिस वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू द ड्रॉपलेट्स ऑफ water and start falling on the earth. This type of rainfall is known as convectional rainfall because it occurs due to the heat of the earth surface. Clear that? Next type of rainfall is cyclonic rainfall. In a cyclone, the wind from high pressure areas on the outside subtly rushes towards a low pressure center. मेक अ डिप्रेशन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, साइक्लोन क्या होते हैं, उसमें सराउंडेड एरिया में हाई प्रेशर होता है और सेंटर में लो प्रेशर होता है, और विंड्स कैसे मूव करती हैं फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया एंड मेकिंग दैट डिप्रेशन, मीन वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। द एयर इन दिस डिप्रेशन इज़ फोर्स टू राइज अप, और जहाँ पर जो डिप्रेशन एरिया है सेंटर एरिया से एयर ऊपर उठना शुरू कर देती है। मूवमेंट आर चेक्ड बाय द इन ब्लोइंग विंड्स। द राइजिंग एयर कंडेंसेस, और जब एयर राइज होती है कंडेंसेस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कंडेंस प्रोसेस होता है, वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू
वाटर ड्रॉपलेट्स एंड ड्रॉप्स एज रेन्स, और रेन के फॉर्म में नीचे गिरना, अर्थ के सरफेस पर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल. लेट अस मेक इट क्लियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. सी इन दिस डायग्राम, दिस इज साइक्लोनिक रेनफॉल. जहाँ पर क्या होता है, साइड में एरिया में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, और सेंटर एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर. और विंड्स कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, एंड सेंटर एरिया में बिकम द डिप्रेशन एरिया. और जहाँ से एयर राइज होना शुरू होती है वार्म के कारण, वार्मनेस यानी ज़्यादा वार्म हो जाती है, ऊपर राइज होना शुरू हो जाती है. और अल्टीट्यूड हाइट पे जाने पर टेम्परेचर कम होने की वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, एंड दिस वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर and start falling on the earth, and this type of rainfall is known as cyclonic rainfall because it is occur due to the cyclone. I hope all of you understand about the types of rainfall and also understand the chapter the weather and the climate, and these the winds, temperature and atmospheric pressure, all three affect the climate and the temperature of any area. I hope all of you understand about this. Thank you for watching the video.